हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम फिर लौटते हैं कुछ वीडियोस के साथ में। और आज का हमारा वीडियो है ऑसिलेशन एंड वेव, क्लास 11th, सेकेंड लास्ट चैप्टर, जिसमें हमें पढ़ना है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो एक बहुत सिंपल सी कहानी है। व्हेन द बॉडी इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इट इज सेड टू बी इन द ट्रांसलेटरी मोशन। बॉडी किस में होगी? ट्रांसलेटरी मोशन में होगी। व्हेन द बॉडी इज मूविंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट, है ना, moving about a fixed point or around the fixed point, the body is said to be in rotational and or in the circular motion. And now the today's topic is oscillatory motion or repeated motion. So let me start this topic with the help of this. The first point is number 1, repeated motion. So the topic is repeated motion. What is the meaning of the repeated motion? Repeated motion means the motion of the body if the body repeats its motion. जनरली मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई उसमें टाइम पीरियड होना चाहिए कि एक डेफिनेट टाइम के बाद आना चाहिए। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से लौट के आते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर घर पे आते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर घर पे आते हैं। कभी बीच में छुट्टी भी होती है, कभी टाइम से पहुंचते हैं, कभी बिना टाइम पहुंचते हैं, कभी जल्दी पहुंचते हैं, कभी देर से पहुंचते हैं, लेकिन हम अपने मोशन को रिपीट करते हैं। तो जहां पर मोशन कंटिन्यूअसली रिपीट हो, कुछ समय के बाद रिपीट हो, कुछ बड़े समय के बाद रिपीट हो, लेकिन वो रिपीट करे अपने आप को, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? रिपीटेड मोशन बोलेंगे। इसी का एक पार्ट बन जाता है पीरियोडिक मोशन। क्या बन जाता है? जैसे इसके नाम में है कि ये एक पीरियड के बाद ही अपने आप को रिपीट करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो जो भी मोशन अब बॉडी अपने मोशन को रिपीट करती है, लेकिन एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती है। कब करती है? आफ्टर डेफिनेट टाइम इंटरवल। अगर एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करती है, तो उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो पीरियोडिक मोशन की एक डेफिनेशन क्या बन जाती है? पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इज दैट मोशन विच रिपीट्स identically after a fixed interval of time. The fixed interval of time after which the body is repeating its motion, this is called the periodic motion, and the time is called the period or periodic time or time period. Okay, some examples are there: revolution of the earth around the sun, revolution of earth about its polar axis, motion of hands of clock, the motion of moon around the earth. These are the simple examples of the periodic motion, because all the things are repeating its motion about a definite time of interval. So you can see that these are the motion in which the repetition of the particular motion takes place after a definite time of interval. Okay, so what is the meaning of the oscillatory motion about it? A part of this, you can say every periodic motion is repeated motion, but every repeated motion is not the periodic motion. Clear na? The repeated motion which is repeats itself after a definite time of interval is called what? It is called the simply what? The repeated motion after time is periodic. Clear na? So definite time interval is required here. The next is oscillatory motion after that. So oscillatory motion So what is the meaning of this? So let me start. Oscillatory motion. Okay, so what is the meaning of this thing? Very simple. This is oscillatory or vibratory motion, so you can say both are the same. Oscillatory and vibratory both are the same motion. So very simple idea behind is that the motion in which the body moves to and fro, back and forth, up and down about a fixed point. अगर बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट एंड इन डेफिनिट टाइम ऑफ इंटरवल, यानी कि पीरियोडिक मोशन का ही दूसरा पार्ट ये है जिसमें हम मोशन की ऑसिलेशन को या उसके पीरियोडिक रिपीटेशन को एट अबाउट द मीन पोजीशन दिखा रहे हैं. लेट अस सपोज दिस इज मीन पोजीशन MP
the body is moving to and fro. In between these two fixed points, this is extreme position, this is also extreme position. So if in between these two extreme position, position A and position B, and a part of this there is a mean position M, and if the body is oscillating under under this condition, this is to and fro, back and forth, maybe it is up and down, but you can see that the motion, you can represent the motion on the straight line. Okay, sometimes it is not easy to represent the motion on the straight line, so let me represent the motion of the tip of the particular body, motion of the perpendicular of the tip of the body on the straight line. For example, if a body is revolving in a circle and this is its mean position, if you are representing the motion between these two points, it means this straight line about which you are representing the motion. ऐसे ही हमारे पास ये दो पॉइंट हो गए जिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है उसके टिप से, है ना। ये दो पॉइंट हो गए जिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो पॉइंट हो गए जिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो पॉइंट हो गए जिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इस टाइप से भी हम मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं तब भी हम उसे एक स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये टू एंड फ्रो मोशन है जिसमें एक डेफिनेट टाइम के बाद अगर ये रिपीटेशन आ रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है, या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए वेरी सिंपल मेथड है कि हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द वॉल क्लॉक इज ऑसिलेटरी मोशन। जो हमारी वॉल क्लॉक होती है उसके पेंडुलम का जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन है। इसके बाद हम देखते हैं मोशन ऑफ द बॉब इज ऑन द सिंपल पेंडुलम इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ द loaded spring is the simple harmonic motion, motion of liquid contains in the U-tube is the simple harmonic motion, a cylinder is in the liquid is the simple harmonic motion. Okay, so many examples are there, but these are the simple harmonic motion. So harmonic motion and simple harmonic motion, periodic motion, just the harmonic oscillation. So how can we represent the harmonic motion and harmonic oscillations? So let me explain the particular function that repeats itself is called the periodic function. For example, suppose particular function is the function of time. It repeats its value after a definite time of interval. This time is called the time period. So this function can be written as t plus capital T. इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, t plus capital T की फॉर्म में लिखेंगे, और ये जो फंक्शन होगा आफ्टर सेकेंड टाइम पीरियड ये अपने आप को फिर रिपीट करेगा, वैल्यू वही आएगी, तो यहाँ पर हम t plus 2t कर देंगे, और आफ्टर थर्ड टाइम पीरियड एंड सो ऑन। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो भी इस मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे फंक्शन होते हैं, और ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि अगर मुझे कहीं पर किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले मेरे पास टाइम पीरियड होना चाहिए। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, the least interval of the time after which the periodic motion repeat itself is called the time period. Similarly, the frequency, you can define the number of the oscillation within 1 second is called the frequency. So you can say also that it is defined as the number of the periodic motion executes by the body in the per second. एक सेकंड में एक बॉडी ने कितने ऑसिलेशन, कितने हार्मोनिक ऑसिलेशन वहां पे प्रोड्यूस किए, पीरियोडिक मोशन किए, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी इज द सेम। सो एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड, यू नो वेरी वेल, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, इन द सेंस you can see that delta theta upon delta t, or for small value this will be d theta upon dt. This is also can be written by 2 pi upon capital T. This is also 2 pi nu. As per our requirement you can use the value of the omega, and the omega is also named can be given by v upon r. V is equals to r omega, so this is v upon r when the body is moving on the circular track having the radius r. Its linear velocity is v, so you can represent the angular velocity in the term of the linear velocity is angular velocity is equals to linear velocity upon radius. Very simple is this. Okay, so you can calculate the displacement. So I'm going to calculate the I'm going to take the example of the simple harmonic motion as the body is moving on the circular track, is executes its motion after a definite time of interval, and we are able to represent its motion about the line, about its mean position. Then this motion is called what,
the simple harmonic motion or SHM. So I am erasing it and let me proceed for the next. Very simple thing is this. आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा टर्म से इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस इक्वेशन को बताते हैं, बहुत सिंपल सा टर्म लेते हैं। इसमें हम बहुत तरह से 2-3 तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट वे है मैं वो यूज करने जा रहा हूँ। बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारी चीजें बताएंगी, है ना। अपना अपना तरीका होता है बताने का, अपना अपना तरीका होता है समझने का। तो मैं जो सिंपलेस्ट मेथड मेरे माइंड में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ उस वेबसाइट पे या उस चैनल पे ये चीज़ थी, आपके पास ये चीज़ है। भाई सिंपल, मैंने बोला ना, जो मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए सबसे सिंपल रहेगा, मैं उस मेथड को यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन को मैंने अभी आपको बताया और अभी मैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की बात करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे सिंपल मेथड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लेते हुए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। किसको ले रहा हूँ मैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ले रहा हूँ। तो बहुत सिंपली मैं इस मोशन को लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने देखा मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। मैं चाहता तो एक ऑटो शेप से बना सकता था, बट मैंने नहीं बनाया। ये एक मेरी सेंटर से जा रहा है, ये एक एक्सिस हो गई, ये मैंने सेंटर यहाँ बना दिया, कोई बात नहीं, सेंटर को हम यहाँ शो कर देते हैं। ये सेंटर O हो गया। सपोज दैट द बॉडी इज एट द पॉइंट P। बॉडी कहाँ पर है? P पॉइंट पर है, और इसने इनिशियली एक एंगल थीटा बनाया हुआ है, यू कैन सी, है ना। We know that omega is equals to theta upon t for the particular time, so I can write theta is equals to omega t। तो जहां पर भी आप omega t पढ़ते हैं थीटा होता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ये थीटा इज नॉट जस्ट अ एंगल। ये क्या है? ये हमारा एंगल ही नहीं है केवल, ये क्या चीज है? ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है ना। ये एंगल क्या बताता है? ये फेज को भी बताता है। किसको बताता है? फेज को। देखो याद रखना हमेशा, एक टर्म हमारी होती है फेज, बट फेज को कौन बताता है? एंगल ही बताता है। फेज क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट मोशन, सॉरी पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन। और पोजीशन डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? काम करता है हमारा एंगल। तो हम एंगल से फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ दिस एंगुलर दिस सर्किल इज ए। तो ये हमारी ए हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, ये हमारी ए हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, कंप्लीट इज ए। मैं ठीक है, अब क्या किया मैंने? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और आप देख रहे हैं मैंने यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एक छोटा सा काम कर लेते हैं। ये डिस्टेंस मैं सपोज कर लेता हूं y है ना। तो सिंपली बात है, ये भी y हो जाएगी, और ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस x हो जाएगी। कंप्लीट a थी, है ना, ये x हो जाएगी। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ए है। अगर हम मीन पोजीशन के अबाउट देखें तो बॉडी हमारी कितना चल सकती है? ए चल सकती है। तो इसी को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी ऑसिलेटरी बॉडी का अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जो भी होगा ए नॉट ए, वो एक ही वैल्यू हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड का क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। Sorry, this is called its amplitude. So this displacement is called its amplitude. तो amplitude is nothing special, very simple thing is amplitude. ठीक है, चलो एक छोटी सी बात और उठाते हैं यहाँ पर, उस छोटी सी बात को बताते हैं। बहुत प्यारी सी बात है, उसको लेके चलते हैं। ठीक है, क्या है? अगर मैं यहाँ पर y को निकालना चाहूं तो मुझे एक एंगल यूज करना पड़ रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन, आप देख पा रहे हैं, a। So when sin theta is equals to y upon a, I can also write sin omega t at the place of this. This will be sin omega t is equals to y upon a. Similarly, अगर आपको cos की रिक्वायरमेंट हो तो आप निकाल लीजिएगा। मैं केवल y के बेस पे कैलकुलेशन कर रहा हूं। You can do the calculation on the, ठीक है, तो आप x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of cos theta. So cos theta is equals to x upon a, again based upon hypotenuse ना। तो इसे हम लिख सकते हैं cos omega t is equals to x upon a. As per our requirement we can use x is equals to a cos omega t. इधर हम क्या यूज कर रहे हैं? जनरली हम जो यूज करेंगे हर इक्वेशन में y is equals to a sin omega t यूज करेंगे। ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की दोनों ही इक्वेशन है। बोले सर इन्हीं इक्वेशन को क्यों यूज किया? सोचने वाली बात है। तो बेटा वो सिंपल सी कहानी है, साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, ये अपने आप को रिपीट करते हैं या नहीं करते हैं?
आफ्टर पर्टिकुलर एंगल, आफ्टर पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इनकी वैल्यू रिपीट होती है, इसलिए ये हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को अगर हम साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां साइन या कॉस आ सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, आपने देखा कि ये अपने मोशन को रिपीट करता है, तो यानी कोई फोर्स ऐसा लग रहा होगा जो पहले इसे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएगा और लौटा के लेके आएगा। जैसे सपोज करते हैं मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन के अबाउट इधर ले गया और इधर से इधर लौटा के लेके आया, और पहले मीन पोजीशन पे लाया, फिर अब एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया। एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, लेके आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फोर्स बार बार यहाँ पर इसकी मीन पोजीशन को अचीव कराने की कोशिश करता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब रीस्टोरिंग फोर्स हमारे द्वारा अप्लाई, जो हम अप्लाई करते हैं, जो हमने अप्लाई किया उस फोर्स के अपोज में होता है, तो हम क्या कहेंगे, जो हम अप्लाई करते हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होता है। तो हमारे फोर्स के अगेंस्ट क्या वैल्यू आ रही है, सिंपल सी वैल्यू है, फिर उसे हम फोर्स को बोलेंगे F इक्वल्स टू माइनस के एक्स या माइनस के वाई से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस के एक्स की फॉर्म में उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर रिक्वायरमेंट एक्स है तो एक्स और वाई है तो वाई। अब एक मजेदार बात आपको बताना चाहूँ, अगर हमने इनिशियल पोजीशन ये ली है, मेरी बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो अगर हमने इनिशियल पोजीशन ये ली है जिस पर मैं टिक लगा रहा हूं, ये हमारी अगर इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, तो इस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, तो हमने ये जो एक्सट्रीम मीन पोजीशन ली है, अगर गलती से हम पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फेज यानी कि एंगल बढ़ जाएगा, और एंगल आपका क्या यूज हो जाएगा, एंगल प्लस थीटा यूज हो जाएगा, है ना। और अगर हम ये पोजीशन यहाँ ना लेके कहें कि भाई ऑलरेडी बॉडी यहाँ पर है, यहाँ से लेंगे तो एंगल डिफरेंस आ जाएगा, है ना, फेज का डिफरेंस आ जाएगा, इस फाई का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाई हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। और नीचे वाले में क्या आ जाएगा, थीटा प्लस फाई। तो वहां पर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ओमेगा टी प्लस माइनस फाई यूज कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा में हम फेज यूज कर रहे हैं इसे फेज डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। बात को समझिएगा, अगर हम जिस मीन पोजीशन ले रहे हैं उससे पहले से बॉडी मोशन कर रही है और वो एंगल गिवन है, तो वहां पर वो एंगल ऐड हो जाएगा, तो आपकी फेज डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर हमारी इनिशियल पोजीशन के बाद में कोई एंगल बन रहा है तो मेन एंगल अगर हमें वहां से निकालना है तो वो पोजीशन माइनस हो जाएगी, तो ओमेगा टी माइनस फाई हमें वैल्यू मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं पोजीशन ए और पोजीशन बी पे है। तो ए पे हमारा ओमेगा टी प्लस फाई वाली सिचुएशन बन रही है और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस फाई वाली सिचुएशन बन रही है। सिचुएशन को हम यूज कर लेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। याद रखना है, जब भी हम कोई इक्वेशन इस टाइप से लिखते हैं उसका जो भी पार्ट साइन या कॉस के बाहर होता है वो एम्पलीट्यूड टर्म को शो करता है, और जो साइन या कॉस के अंदर वाला ये पूरा जो पार्ट होता है ये वेव फॉर्मेट या वेव फॉर्म को शो करता है। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी कि मैं कहूंगा वेव फॉर्म, तो आप इसको बताएंगे कि सर ये वेव फॉर्म है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, या हम x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई यानी कि फेज डिफरेंस के साथ में इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो ये जो a है ये एम्पलीट्यूड को शो करता है। अब मैं जैसे किसी एक इक्वेशन को पकड़ लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी को ले लिया, है ना। अगर फाई रहेगा भी तो यार वो कांस्टेंट है, तो वो अगर हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में लेते भी हैं तो वो जीरो होने वाला है, कांस्टेंट है, उसकी कोई मुझे मतलब इफेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी और इसे u से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारी हो जाएगी dy by dt, और इसको हम लिखेंगे a, और साइन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा t हो जाएगा, और ओमेगा t का ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो a ओमेगा के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t। एक इक्वेशन के फॉर्मेट में हमारी ये वैल्यू हो गई। अगर मैं cos को चाहूं तो
अगर अपने फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मैं से ओमेगा लिख के यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूं, और इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारा y हो गया। तो इसकी नई वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इसे एक्स स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हमारा चलेगा, जैसी हमें जरूरत होगी हम वैसा यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ तो देखते हैं कि ये वैल्यू हमारी कहाँ पर जा रही है। ठीक है भाई, थोड़ा ज्यादा ही नीचे आ गया, थोड़ा सा इसको ऊपर किसका देते हैं कि आपको दिखता रहे। अगर मैं y को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देता हूं तो क्या बनेगा, अल्फा हो जाएगा, या कुछ बुक्स में ऐसे a लिखा गया है, घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे du अपॉन dt। क्या बोलेंगे, du यानी डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी। वैसे भी आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा एक्सेलरेशन होता है, तो ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। ए ओमेगा एज इट इज है, कॉस को हम माइनस साइन लिखेंगे तो ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और एक ओमेगा और आएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी और ए मिलके हमारा वाई हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई या ओमेगा स्क्वायर एक्स, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है कि ये वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज को लिखते हैं और एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। कहेंगे सर टेबल क्यों बना रहे हैं, इसको देखते हैं, अभी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा यहाँ पर एंगल लिख देता हूँ थीटा, ये पैकेट और कुछ पोजीशन के पॉइंट्स बना लेता हूँ। यहाँ मैंने अल्फा लिखा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ मैंने u लिखा और u मेरा हो गया जो भी वैल्यू है आप देख सकते हैं, u की दोनों वैल्यू मैं यूज कर सकता हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैंने y लिखा है। जब मैं कहता हूँ कि भाई मेरा थीटा जीरो है, थीटा जीरो है मतलब मैं कहाँ पे हूँ, मीन पोजीशन पे हूँ। पोजीशन क्या है, मैं यहाँ पोजीशन लिखूंगा, पोजीशन, और पोजीशन क्या है मेरी, मीन पोजीशन है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये चेंज हो जाता है यहाँ से कलर। तो ये हो गई मेरी मीन पोजीशन, उस पे y जीरो होगा क्योंकि थीटा जीरो है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, अल्फा जीरो होगा, वहां पे भी साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और मेरा u की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और u इज इक्वल्स टू a ओमेगा होगा। तो आप क्या कहेंगे कि जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे होती है तब उसका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जीरो होता है, लेकिन उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री करता हूँ, है ना, या मैं थीटा चेंज कर लेता हूँ, वैसे थीटा नहीं करना चाहिए मुझे, यहाँ पे करना चाहिए। थीटा की वैल्यू 90 हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन पे हो जाएगी, इसे हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए है एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, मीन पोजीशन से हम एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहे हैं, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे जा रहे हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे जा रहे हैं, तो वहां पर y की वैल्यू a हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। u हमारा 0 हो जाएगा, और अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, यानी कि अल्फा मैक्सिमम होगा। तो हमें याद रखना है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जीरो होते हैं, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होती है या जीरो होती है, हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम होते हैं। हमें यहाँ से एक बात ही मालूम पड़ गई, इसको रेज कर देते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यू कैन राइट दिस, मैं जिससे इसको रेज कर सकूं आसानी से, मैं इसको रेज करने की कोशिश कर रहा हूं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए कि हमारी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, ठीक है, बस इसको डिलीट किया, इसके ऊपर के पोर्शन को भी डिलीट कर देते हैं फटाफट से, फिर आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात हो रही थी, सॉरी,
ठीक है, चल अब आगे की बात पकड़ते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी सारी पॉइंट्स को आगे लेके आते हैं। एक्सेलरेशन वगैरह मुझे मिल गया तो आ ही गया, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे समझ लीजिएगा। आपको जैसे देखा, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, है ना, एंड एम्पलीट्यूड इज 5 सेकंड। टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड 2 सेकंड यानी कैपिटल टी की वैल्यू दी हुई है 2 सेकंड, एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर, ये दो चीज दी हुई है। और पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, वेलोसिटी बताइए, एक्सेलरेशन बताइए आफ्टर 1/3 सेकंड ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के 1/3 सेकंड से। तो स्मॉल टी की वैल्यू भी हमें दी हुई है 1/3 सेकंड्स, ठीक है ना। तो जो भी पूछ रहा है निकाल देंगे। हमारा y का फॉर्मूला पहले क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, तो हम इसे लिख सकते हैं a हमारा 5 हो गया, इसे हम साइन लिखेंगे, ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिखेंगे, 2 हो गया, इनटू स्मॉल टी 1/3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, पाई/3, और पाई/3 की वैल्यू क्या होती है √3/2, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, पाई/3 क्या बन जाएगा भाई, पाई/180 है ना, 180/3 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 5√3/2, क्या हो जाएगा 5√3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 1.732, या आप डायरेक्टली 5 इंटू 1.732 कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई नहीं वेलोसिटी निकालनी है, तो u इज इक्वल्स टू, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, a ओमेगा cos ओमेगा टी, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y, यू कैन फाइनली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। और so in sometimes I can use alpha or a, so don't be confused about it, you can use alpha and a both of this, है ना, अब एज पर रिक्वायरमेंट। बट एक बात याद रखिएगा, अगर अल्फा यूज कर रहे हैं तो अल्फा यूज कीजिएगा, ए यूज कर रहे हैं तो ए यूज कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं अब इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो बेटा कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो रिप्रेजेंट करने के लिए y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी को ही ले लेते हैं, कॉस को लेना चाहो कॉस को ले लेना। मैं y की डिफरेंट वैल्यू के लिए फटाफट से ग्राफ खींचता हूं, आप देखिएगा ग्राफ कैसा आ रहा है। 2 ही पॉइंट मुझे चाहिए, ज़्यादा मुझे बड़ा ग्राफ नहीं बनाना है। तो सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पर स्मॉल टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और यहाँ पर y की वैल्यू ऑब्टेन कर रहा हूँ। पहले मैंने 0 पुट किया, फिर मैंने t/4 पुट किया, फिर t/2 किया, फिर 3t/4 किया और फिर t पुट कर दिया, यानी 1 टाइम पीरियड के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं a साइन ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख देते हैं और स्मॉल टी। अब स्मॉल टी की वैल्यू 0, तो 0 पे 0, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। t/4, जब आपने t/4 लिखा बेटा तो समझो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी है, इसको हमने t/4 लिख दिया, तो ये t से t कैंसिल, इससे 2 टाइम यानी पाई/2, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, फिर पाई/2 लगाएंगे, फिर अगेन 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस a हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके एक बार देखेंगे और वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं t और y के बीच में ग्राफ खींचता हूं तो पहले 0 इक्वल डिवीजन बनाएंगे, t/4 उतने ही डिवीजन पे t/2 उतने ही डिवीजन पे 3t/4 और उतने ही डिवीजन पे t, फिर ऐसे आगे और बढ़ा देंगे। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए है और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है। माइनस ए और प्लस ए के बीच में ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है, इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। बस सिंपल सी कहानी है, जैसे हमारा साइन वेव आती थी, है ना, साइन का वो जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, उसमें जो साइन वेव आती है वही हमारी इक्वेशन आ रही है। अब एनर्जीज की बात करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कौन कौन सी होती है आप लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल, 1/2 mv²। तो यहाँ पर mv² की जगह mu² यूज कर लेंगे, वेलोसिटी यू दी है, किसी किसी को v यूज करते हैं तो आप v कर सकते हैं, इसे 1/2 ही रहने देंगे, m को m रहने देंगे, u को क्या लिख देंगे, u का वैल्यू सिंपल वैल्यू है, बताइए अभी आपने निकाला था
ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू को पुट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया कि 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज द आंसर फॉर द काइनेटिक एनर्जी। यू कैन मेक इट इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कहा गया है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ y, सो यू कैन राइट इट इज द वर्क डन 0 to w, dw हो जाएगा, और इस dw को हम लिख सकते हैं 0 to y ky dy। कहेंगे सर ये कहां से आया? तो भैया देखो, वर्क डन dw इज इक्वल्स टू माइनस एफ dx होगा या dy होगा, f इक्वल्स टू माइनस के वाई माइनस माइनस प्लस के वाई डी वाई हो गया, तो ये डी डब्ल्यू की वैल्यू के वाई डी वाई आ गई। कहेंगे सर ये माइनस क्यों था? भैया रीस्टोरिंग फोर्स यूज कर रहे हैं, और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको माइनस यूज करेंगे, और उसके बाद जो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है माइनस के वाई होती है, उसको भी लगाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो के वाई की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, या सॉरी ये वाई है यहाँ पर, है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा देंगे 0 to y, है ना, तो हमारा आंसर के वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, या हाफ के वाई स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब बात आती है कि सर ये के की वैल्यू कैसे निकाली जाए, है ना, सोचने वाली बात है ना, ये के कहाँ से आएगा, के की वैल्यू कैसे पुट की जाएगी? अरे तो यार के की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू तो पुट करनी है, तो वाई की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी, कैसे पुट किया जाए, है ना, सोचने वाली बात आती है ना यहीं पे। तो हम बस याद रखेंगे के इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर। तो देखो भाई, ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो m अपॉन k होती है, तो k की नहीं m अपॉन k क्यों, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो k अपॉन m होती है, k अपॉन m, हाँ k अपॉन m होती है, सॉरी k अपॉन m, और वो भी अंडर रूट में। अरे यार पढ़ाया है ना अभी, जैसे बहुत सारी चीज़ें आप एक्चुअली सिलेबस से हटने की वजह से हम नहीं बता पा रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अगर मैं यहाँ से निकालूं तो मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के अपॉन एम मिलेगी, जिससे आप लिख सकते हैं ये हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है ना, इससे हम लिख सकते हैं के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो एट द प्लेस ऑफ के यू कैन राइट 1/2m ओमेगा स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के प्लेस पे तो आप जानते हैं वाई स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इसके लिए ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। बोले सर ये वैसे आया कहाँ से, एक बार इसको डिस्कस करना चाहें तो बेटा आप कर सकते हैं। देखो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है मैं बता दूं, यहाँ पे ये वाली चीज आपको कंफ्यूज करेगी ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के वाई लिख सकते हो ना, और इसको आपने क्या देखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस के वाई, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है ना, एफ इक्वल्स टू एम ए, हाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू एम, ये क्या बन गया फोर्स हो गया। देखो एम ए ये एम हो गया, ये हो गया, एम ए क्या होता है फोर्स होता है। तो अब देखो यहाँ से क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर वाई, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो के इज इक्वल्स टू ओमेगा एम, ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। रीस्टोरिंग फोर्स के हमने कंपेयर कर दिया जो हमें फोर्स मिल रहा है ऑसिलेटिंग फोर्स उससे। आपसे कोई पूछे भी तो ऑसिलेटिंग फोर्स कितना होगा, तो एफ इक्वल्स टू एम ए होता है ना बेटा, तो एम 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 रहेगा, ए ओमेगा स्क्वायर वाई हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर वाई, और इसको कंपेयर कर दिया माइनस के वाई से, तो के की जो वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई एम ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ पुट कर दिए, वाई स्क्वायर एज डी छोड़ दिया। टोटल एनर्जी ई की वैल्यू क्या होगी बेटा, अब देखो ये इक्वेशंस लर्न करने वाली इनको माइंड में रखना है अभी, क्योंकि इससे ही ग्राफ बनेगा। E इज इक्वल्स टू यू प्लस के होता है ना, क्या होता है यू प्लस के, यू की वैल्यू क्या है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें से अगर हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर, यही बचेगा। तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर इज ई। तो टोटल एनर्जी अगर आप देखें ई इंटू ए स्क्वायर, सॉरी
इट इज ए स्क्वायर ऑल्सो। तो आप देखें हमारी एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करती, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, उसके टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है, उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। अगर एम्पलीट्यूड फिक्स है तो पूरी में भी टोटल एनर्जी हमारी नहीं बदलेगी। तो इस ग्राफ को अगर हम चाहें तो ऐसे भी शो कर सकते हैं। देखिएगा, मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई देखो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है, के का फॉर्मूला आ रहा है 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है। यू का फॉर्मूला आ रहा है 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ रहा है। और एनर्जी का फॉर्मूला जो टोटल आया वो आया 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी बात समझो कि अगर मैं एनर्जी के लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट 0 to y, ये y के लिए ग्राफ खींचता हूं, तो हमेशा जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है y के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी। देखो ऐसे ही हो रहा है। और ये पैराबोलिक क्यों है? क्योंकि दो वेरिएबल हैं, है ना, एक u और एक y, और दोनों वेरिएबल में एक की पावर 2 एक की पावर 1, तो ये क्या बनाएगा? एक पैराबोला बनाएगा। तो ये पैराबोला जो है हमारा बन गया, और ये यहाँ से ऐसे इस टाइप से इसको ले लेगा। ये किसका ग्राफ हो गया? y का। और ये ग्राफ हो गया e का। e का ग्राफ तो हर जगह फिक्स है, तो यहीं से हमारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ डाउन होना शुरू कर देगा और इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इस टाइप से आएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का, और ये ग्राफ हमारा ई का है। ये ग्राफ शो करता है कि भाई E इज इक्वल्स टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वाई चेंज होने से ई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो फिक्स रहेगी, वो बराबर रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर u की वैल्यू 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर है। एज द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ u इंक्रीजेस, तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। और अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू बढ़ाते हैं तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की टर्म में जो भी आंसर आएगा वो घटेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के साथ साथ कम होने लगती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है, और टोटल एनर्जी सेम रहती है। किसी पॉइंट पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे हम मीन पोजीशन की बात करते हैं, मीन पोजीशन पे क्या है? ये वाली पोजीशन पे हमारी मीन पोजीशन की बात करते हैं। आप यहीं से देख लीजिए, मीन पोजीशन पे u मिनिमम है और k मैक्सिमम है, e फिक्स है। जबकि हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, तो वहां पर u हमारा कितना है? u हमारा मैक्सिमम है, k हमारा मिनिमम है, और e हमारा फिक्स रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ये हमारा हमेशा फिक्स रहता है। तो ये इसके बिहाइंड के कुछ फॉर्मूले थे। इस ग्राफ को अगर हम शो करना चाहें तो इस टाइप से इस ग्राफ को शो कर सकते हैं। एक बड़ी मजेदार ITUS करते हैं। ITUS सब जानते होंगे, इसकी टोपी उसके से ITUS। मैं ज़्यादा देर बोर नहीं करूंगा, एक ऑसिलेशन का टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट में भी पढ़ लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सिंपल सा है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम ही सिलेबस में है, तो सिंपल पेंडुलम को हम बाद में भी कर सकते हैं, बट अभी भी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस मुश्किल से 5 मिनट का है, मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना, बट प्रॉपरली देखते रहिए। भाई ओमेगा की वैल्यू मैंने 2π/T पढ़ी है, और ओमेगा मैंने अभी क्या पढ़ा? ओमेगा इक्वल्स टू, अगर आप गौर से ध्यान से देखें तो ओमेगा इक्वल्स टू आपने m/k भी पढ़ा। भाई आपको याद आ रहा है मैंने क्या पढ़ा था? मैंने बताया भाई फोर्स जो होता है हमारा ma होता है, a की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर y होती है, तो ये हमारा आया था, इक्वल्स टू -ky भी आया था, है ना। सॉरी, y से y कैंसिल कर दिया था, k बचा, तो k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर हो गई थी। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई थी? ओमेगा स्क्वायर k/m आ गया था, नहीं आ गया था? तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू √k/m आया, नहीं आया? याद रख, हो जाएगा, अब नहीं हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू √k/m भी आ गई थी, इज इक्वल्स टू 2π/T भी आ गया था। यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो t इज इक्वल्स टू 2π√m/k लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे कहीं पर फोर्स कांस्टेंट पता है और वहां पर उस बॉडी का, ऑसिलेटरी बॉडी का मास पता है, तो मैं आसानी से टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। अगर मुझे स्प्रिंग के केस में निकालना है तो स्प्रिंग के केस में तो बहुत जल्दी हो गया, क्या हो गया? मास अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, हमारे लिए बड़ा अच्छा आंसर बन गया। लेकिन एक काम और भी है
कि भाई अगर मैं ओमेगा को ये वैल्यू के अपॉन एम ना लिख के ओमेगा सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई जो होता है, यहाँ पर मैं अगर एक्सेलरेशन अपॉन वाई लिखूं, ठीक है, गौर देना मेरी बात को, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सर माइनस कहाँ गया? आप सोचोगे क्या सोचोगे कि सर यहाँ पे माइनस कहाँ गया? तो यार मैं केवल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो मैं माइनस को वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हटा सकता हूँ। तो ओमेगा की वैल्यू जो हो गई वो हो गई अंडर रूट अल्फा अपॉन वाई। अगर मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू टी अपॉन 2 पाई लिख दूं, है ना, या 2 पाई अपॉन टी, है ना, सॉरी यही तो वैल्यू होती है, अंडर रूट अल्फा अपॉन वाई हो जाएगा, और यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई अंडर रूट y अपॉन अल्फा, यानी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता है तो अंडर रूट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू 2 पाई इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड के हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। क्या फॉर्मूले हो गए? दो फॉर्मूले हो गए। एक हो गया t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k अगर k और m गिवन है, और t इज इक्वल्स टू 2 पाई y अपॉन अल्फा अगर हमें y और अल्फा गिवन है। ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है, 1 अपॉन 2 पाई, है ना, अंडर रूट के अपॉन एम, और यहाँ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट अल्फा अपॉन वाई। सिंपल सी कहानी है, इन सिंपल सी कहानियों को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक ही लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है जिसको हमें पढ़ना है, जिसको हमें समझना है, वो है हमारा टॉपिक, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम इज अ डिवाइस विच इज हैंग in this way that there is a fixed rigid surface in which this surface there is a thread. This is connected with a bob which is very heavy bob, and the thread is very light, है ना। इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया बेटा, याद रखेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, हम बहुत बड़े डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते हैं, हमेशा छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ गया। अगर मैं यहाँ वर्टिकल से इस एंगल को बेटा कैलकुलेट करने बैठ जाऊं तो यहाँ तो मेरा ये वर्टिकल है ही, ये वर्टिकल mg यहाँ काम करेगा ही, और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इधर कौन काम करेगा, इधर कौन काम करेगा, इधर करेगा mg cos थीटा काम करेगा, और इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में कौन काम करेगा, mg sin थीटा काम करेगा। राइट और रॉन्ग? इधर कौन काम करेगा, इसका टेंजेंट काम करेगा। ये लेंथ अगर इस पेंडुलम की स्मॉल एल है तो हम पेंडुलम की लेंथ स्मॉल एल लिख देते हैं। आई थिंक इससे ज्यादा तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अब मैं एक सिंपल सी बात जानता हूं कि भाई अगर मुझे कहीं पर किसी जगह पर कैसे भी फोर्स निकालना है, वैसे तो हम टॉर्क भी निकाल सकते हैं, थीटा से कैलकुलेट हो जाएगा टॉर्क, बट मुझे क्या निकालना है, अगर चलो टॉर्क से भी अभी बताऊंगा बराबर में, कुछ लोग टॉर्क से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग फोर्स से एक्सप्लेन करते हैं। तो F इक्वल्स टू, है ना, दोनों तरीके से इसको एक्सप्लेन किया सकता है, तो मैं अभी फोर्स से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा बहुत सिंपल है। इससे इधर कौन खींच रहा है, खींचने वाला फोर्स कौन सा लग रहा है, माइनस में mg sin थीटा लग रहा है, नहीं। फॉर स्मॉल वैल्यू मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं माइनस mg, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरी आर्क अपॉन रेडियस, लेट अस सपोज दिस आर्क इज एंगल, तो यहाँ थीटा भी लिख सकता हूँ। ये मेरा हो गया फोर्स, और फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ma, तो m अल्फा लिख सकता हूँ यहाँ पे बड़े आसानी से, m से m कैंसिल कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी थीटा हो जाएगी, और थीटा एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस जी एक्स अपॉन एल। हो गया। अब मैं यहां पर ही इन सारी वैल्यूज को पुट कर दूं, तो भैया टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2 पाई y अपॉन अल्फा अंडर रूट में होता है, अगर y के प्लेस पर x कर देंगे तो x अपॉन अल्फा की वैल्यू l अपॉन जी हो गई, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी हमारा टाइम पीरियड हो गया। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना करना चाहो तो यहां पर आ जाओ, है ना। अल्फा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, x के लिए x कर देंगे, y के लिए y कर देंगे, हो जाएगा, और माइनस जी एक्स अपॉन एल हो जाएगा, x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, है ना, और यहाँ पर अंडर रूट जी अपॉन एल बचा ओनली, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t
टी की इधर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2π√L/g। जैसी आपकी इच्छा यूज करना, कहीं पर भी नंबर नहीं कटेंगे, यहाँ से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई कहता है कि भाई सेकंड पेंडुलम की लेंथ बताइए, तो आप t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड यूज कर लीजिए, g की वैल्यू 9.8 यूज कर लीजिए, 2π की वैल्यू आप जानते हैं, l की वैल्यू 1 मीटर के नियर अबाउट आ जाएगी, 99 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, तो उसे हम 1 मीटर 99 सेंटीमीटर के आसपास आंसर आता है, उसे हम 1 मीटर कह ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे द पेंडुलम विच हैज द टाइम पीरियड एज 2 सेकेंड, जिस भी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उस पेंडुलम को सेकंड पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड नहीं होता, 2 सेकेंड होता है। तो आज का काम हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नई वीडियोस पाने के लिए।